Welcome friends, class 7 subject grammar, phrases and clauses. Friends, grammar is very important. Why it's important? Because if you want to speak English, you must have grammar. It's very necessary. So today we are going to conclude the chapter. We are going to finish the chapter. Yesterday we started the chapter. Now I'll revise the chapter again and we'll do some exercise. Thank you. Now, phrases. And on the other hand side is clauses. Now, what is phrases? It is a group of words. That makes sense but not complete sense. Is called phrase. So it is a group of words. It's a group of words that make sense. Make sense. What we understand what the sentence want to say, but it's not complicated. But not complete sense. It's called example. At night. At night. On the shelf. With her father. It's a group of words. They are group of words that make sense. At night, रात को, on the shelf पे, with her father, उसके पापा के साथ, but not complete sense. लेकिन complete sense at night, but what? What at night? On the shelf, but what? With her father, but what? Where to go with her father? Who's going with her father? We don't know. That means those sentences are incomplete. They need to be completed. उनको complete करना पड़ेगा. Make sense. रात को on the shelf with her father, उसके पापा के साथ, पता चलता है हमें. थोड़ा बहुत सेंस है, but complete sense नहीं है, complete sentence नहीं. हम नहीं कह सकते what the word trying to say us. So each of the group each of the group of words makes sense. But not complete sense. Each of the group of words makes sense पता चलता है. At night on the shelf with her father पता चलता है, but not complete sense. In order to express complete sense, need some more words. Need some
need some more words here, need some more, maybe on this side or this side or this side. Anyway, need some more words to complete the sentence. Make sense. Sense है रात को on the shelf पे with her father, उसके पापा के साथ. I understand. But it's not a complete sentence. Sentence complete नहीं है, तो उसको complete करने के लिए थोड़े words की जरूरत पड़ेगी आगे या पीछे. तो आज हम ये words को complete करेंगे, sentence को complete करेंगे. You guys understood? I'm going to rub the word. Phrases. Phrase का मतलब क्या होता है? It is a group of word. ये group word का एक group है that makes sense. Sense पता चलता है कि रात को वो पता चलता है. But लेकिन नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं पता चलता रात को. लेकिन क्या क्या होता है रात को? द मून शाइन्स एट नाइट. मून चमकता है रात को. इट्स कॉल्ड फ्रेजेस. मैंने ये तीन लिखे हैं जो कंप्लीट सेंस नहीं है, तो उसके लिए हमें और वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे. नाउ एट नाइट. The moon shines at. तो मैंने क्या किया? ये मैंने ऐड किया. Need some more words. तो वर्ड्स जो चाहिए थे वो मैंने ऐड कर दिए. Now it's complete. अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. The moon shines at night. Now second. On the shelf. Keep this utensils. Utensils का मतलब होता है बर्तन. घर पे जो बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना पकाते हैं वो यूटेंसिल्स कहते हैं उसे. तो उसे शेल्फ पे रख दो. Keep these utensils on the shelf. ये यूटेंसिल्स को शेल्फ पे रख दो. तो हमें जो नीड सम मोर वर्ड्स चाहिए थे वो हमारे आ गए. Keep these utensils आ गया और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. Now it's the time for with her father. She is living with her father. वो अपने पापा के साथ रहती है. She is living with her father. With her father हमारा था वर्ड जिसमें हमें थोड़े वर्ड्स ऐड करने थे. जैसे हमने कहा तो मैंने ऐड कर दिया. She is living. वह रहती है अपने पापा के साथ. Now those sentences are completed. क्लियर. ये था फ्रेजेस के बारे में. मैंने कहा फ्रेजेस की डेफिनेशन इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस. वर्ड्स का एक ग्रुप है जो सेंसिबल है. सेंस पता चलता है क्या कहना चाहता है बट नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. सो वी नीड सम मोर वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंस. और मुझे कंप्लीट कर दिया. यही अपने पास था. हमें ऐड करना था. मोर वर्ड्स चाहिए तो मैंने ऐड कर दिया और इसको कंप्लीट कर दिया. क्लियर स्टूडेंट्स? यू अंडरस्टूड? दोस आर फ्रेजेस. Now we will move to the clauses. A group of words which forms a part of sentence containing
subject and predicate. तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंटेन करता है सब्जेक्ट को और प्रीडिकेट को, इज कॉल्ड क्लॉज। Example: he has a chain which is made of gold। तो उसके पास चेन है जो गोल्ड से बनी हुई है। यहाँ पे which is made of gold is not a phrase। तो यहाँ पे जो दिया गया है which is made of gold is not a phrase, क्योंकि because it has subject and predicate। तो उसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, इसलिए उसे हम फ्रेज नहीं कह सकते। यू कैन नॉट टेल इट अ फ्रेज क्लॉज। नाउ we'll do some examples. Clauses: a group of words which forms a part of sentence containing a subject and a predicate is called clause। तो clause क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रीडिकेट। प्रीडिकेट का मतलब है which, why, when, वो सब WH वाले आते हैं, उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं, उससे बना होता है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है he has a chain, उसके पास चेन है, लेकिन किससे बनी है? which is made of gold। तो which is made of gold में which हमारा सब्जेक्ट है और is made of gold वो हमारा प्रेडिकेट है। Now we'll do some example of clauses. We cannot start while it is raining। We cannot start while it is raining। बारिश हो रही है तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते। Next, people who are honest। ऑनेस्ट का मतलब होता है प्रामाणिक। आर रिस्पेक्टेड, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। जो लोग ऑनेस्ट है उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। ये हमारा प्रेडिकेट। We cannot start while it is raining। while it is raining है हमारा प्रेडिकेट। People who are honest है वो रिस्पेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। They are respected by the people। तो मैंने आपको पढ़ाया क्लॉजेस के बारे में और फ्रेजेस के बारे में। फ्रेजेस में मैंने बताया कि इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस। सेंस बनाता है सेंटेंस में, कंप्लीट सेंस नहीं है।
क्योंकि क्या होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर वो सेंटेंस को अकेले रखा जाए तो उसका मीनिंग नहीं निकलता है। सपोज एट नाइट, लेकिन कुछ मतलब नहीं निकलता है। सेंसिबल है, सेंस है, लेकिन इतना भी सेंस नहीं है कि हम अंडरस्टैंड कर पाए। ऑन द सेल्फ पता चलता है, सेल्फ पे, लेकिन क्या बुक्स वगैरह यूटेंसिल्स वगैरह आई डोंट नो, कुछ लिखा नहीं है तो पता नहीं चलता है। विद हर फादर, उसके पापा के साथ, पता नहीं चलता है कौन जा रहा है, बेटी जा रही है या सन जा रहा है, डोंट नो। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ी थी, हमने वर्ड्स ऐड किए और उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया। फिर क्लॉजेस की बात की हमने, तो क्लॉजेस में क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट भी आता है और प्रेडिकेट भी आता है। सपोज मैंने जैसे कहा ही हैज अ चेन, उसके पास चेन है, वो किससे बनी है, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। विच इज मेड ऑफ गोल्ड में विच है वो हमारा सब्जेक्ट है, इज मेड ऑफ गोल्ड वो हमारा प्रेडिकेट है। उसे फ्रेज भी नहीं कह सकते क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने की वजह से वो फ्रेजेस यहाँ भी कहा जाता है। अंडरस्टूड? ओके, any questions? If you have any questions, when you come back to school, just ask me, I'll explain you with the answer. Clear हो गया? चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक्सरसाइज की तौर पर लेके जाता हूँ। नेहा sang the lovely song। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है, उसमें कुछ भी नहीं आता है, प्रीडिकेट भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो वो जैसे मैंने वर्ड्स ऐड करके सेंटेंस बनाया था वही सेंटेंस है। नेहा sang a lovely song। So क्या है, फ्रेज है या क्लॉज है? इट्स अ सिंपल सेंटेंस, सेंस फॉरवर्ड सेंटेंस। तो ये हमारा हुआ फ्रेज। नाउ नेक्स्ट वन, I do not know what he wants. What he wants. तो ये रहा हमारा WH, what he wants, उसे क्या चाहिए। That means it's a clause. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेहा sang the lovely song। सपोज नेहा sang यह दिया था, ऐसे दिया होगा नेहा sang, तो फिर हमें कंप्लीट करना था अदर वर्ड के साथ, तो हमने लवली सॉन्ग या लवली सॉन्ग लिखा था, हमने नेहा sang लगा के उसको सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। तो वो हमारा हुआ फ्रेज। और इसमें जब WH वाले आते हैं, व्हाट ही नोज, उसे क्या पता है, आई डू नॉट नो व्हाट ही वांट्स, उसे क्या चाहिए मुझे पता नहीं है, तो वो हुआ हमारा क्लॉजेस। Thank you guys for watching this video. I hope you understand all chapter. Thank you. Have a lovely day.